Good day, students. My name is Dr. Shafali Daya. I am working as PGT Chemistry at GSSS Katarpuri, Gurgaon. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora. She is working at SCRT Gurgaon. So today, students, will take class 12, part 4 of lesson aldehyde, ketones and carboxylic acids. Unit 12, Part 4. So in this part, we'll take chemical reactions of carboxylic acids that are divided into various subparts. The very first is due to the cleavage of OH bond. Second is cleavage of COH bond. The third involves the reaction due to the COOH group. And the last is the substitution reaction in hydrocarbon part. Fine. So step by step, one by one, we'll take every. The very first is the reaction involving cleavage of OH bond. Mean to say carbonyl group के अंदर carbonyl group बेटा मैंने अलग से draw नहीं किया, but look, this is COOH. तो जो हमारा OH है, इस बॉन्ड का ब्रेक होना मीन टू से प्रोटोन का रिलीज होना, वो वाली रिएक्शंस जो हैं वो अब हम देखेंगे. द वेरी फर्स्ट इज द एसिडिटी. एसिडिटी मीन टू से जितना रेडिली प्रोटोन हमारा रिलीज होता है उतना ही अच्छा एसिड होता है. फाइन. तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, जब उनका H प्लस रिलीज होगा, वो किस कंडीशन में होगा? व्हेन दे विल बी मिक्स्ड इन द water, the hydronium ion will be formed with the loss of proton from the carboxylic acid and the formation of carboxylate anions. This carboxylic anions, you can see I have written in the square bracket, students, here. In this carboxylate anions, there are two oxygens and either of the two have the negative or the double bond, so the resonance will take place and we can say that the whole electron cloud is delocalized between the three atoms, that is oxygen, carbon as well as oxygen. Fine. So this is the highly resonating functional group with the resonance between these, and this conclude to the stability of the anion, that is the carboxylate anion. Now coming to the acidic behavior of the carboxylic acid, from which it is more and from whom it is less acidic in nature. Now, the very first thing is carboxylate anion is greater in stability than the carboxylic group. Why? Because it contributes the H positive, the proton, and forms the carboxylate anion. We can see it from the above reaction. Right. So this is the reason why the carboxylic acid is behaving like a acidic character, is acidic in nature. Fine. जितना readily देगा उतना अच्छा हमारा acid होगा. Now moving to the next point. The carbonyl carbon of carboxylic acid, carboxylic group is less electrophilic than that of aldehyde and ketone. क्यों? Because of the resonance. Ketone के अंदर हमारे पास C double bond O है, वहाँ कोई resonance नहीं होती. In fact, one of the site is polar negative and the other is polar पॉजिटिव, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल साइट कहते हैं, जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. फाइन. The nature, that is the resonating nature of the anion, puts a partial positive charge on the hydroxyl oxygen atom, resulting in more acidic nature of that alcohol. और हमारा जो रिमूव हो जाता है, हमारा एल्कोहल जो है उसका जो एसिडिक नेचर है उससे ज़्यादा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर है, क्योंकि वहाँ पर भी एल्कोहल में भी OH बॉन्ड है एंड हमारा एसिड में भी OH बॉन्ड है, बट एसिड का रेडिली रिलीज हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. वाइल एल्कोहल के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई रेजोनेंस नाम की कोई चीज नहीं है, तो इट इज लेस एसिडिक एंड वाइल द एसिड इज मोर. ओके, इसको हम वैसे भी बोल सकते हैं कि एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं वो एल्कोहल से लेस स्टेबल होते हैं, बिकॉज वहाँ टेंडेंसी टू रिलीज द प्रोटोन क्या है? कम है. सो
they are less acidic. Okay, now carboxylic acids are stronger than phenols. ये एक बहुत important topic है. Why? Because phenols के अंदर resonating structures ज़्यादा हैं. तो हम कहते हैं कि जब भी phenol का ion बनता है, that is the phenoxide ion, और उसकी जितनी ज़्यादा resonating structure है तो उसकी resonating energy ज़्यादा होगी और उसको acidic होना चाहिए more than the कार्बोक्सिलिक. क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अंदर ओनली 2 हमारे क्या है स्ट्रक्चर्स हैं, राइट. तो हम इस डिस्पाइट ऑफ दिस वी कैन से कि जो हमारा रेजोनेंस है फिनॉक्साइड आयन के अंदर वो लिमिटेड है हमारे रिंग के अंदर, एंड इट इज ऑल्सो टू द माइनर contributing sites, that is it is showing here at para, at ortho, right. So this is the minor resonating contributing structures, while on the left hand side you can say there are only 2 resonating structures and more of the charge is localized on the oxygen of the phenoxide, right. So we can say that despite of the more resonating structure, phenol still is a less acidic in nature, less acid, while carboxylic acid. Fine. As for the convenience, scientists have prepared a scale. जैसे pH scale है, right? 11th में हमने जो लेसन किया था, लेसन 7 इक्विलिब्रियम, उसके अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम में आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेम्बर कि हमने pH किया था. फाइन. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, K वैल्यूज एंड KB वैल्यूज भी की थी. द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो हमारा pKa वैल्यूज डिफाइन करती है, राइट. स्ट्रॉन्ग एसिड की pKa वैल्यू लेस देन 1 है. आई हैव गिवन इट हियर कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pKa वैल्यू लेस देन 1 है, और जो वीक होते हैं उसकी क्या होती है, उसकी हमारी एक्सट्रीमली वीक की क्या होती है, ग्रेटर देन 15 होती है. फाइन. इन बिटवीन हमारे जो एसिड्स हैं दे आर मॉडरेट एज वेल एज वीक एसिड्स. फाइन. तो टेबल हमारे को टेबुलर फॉर्म के अंदर मिलती है जिसके अंदर वी कैन इजीली डिपिक्ट कि विच वन इज लेस एंड विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर. Now comes the effect of substituents on the acidity of carboxylic acids. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा होता है, जो कि हमारे फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. फाइन. तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करता है, कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है उसको स्टेबलाइज करता है एंड इट स्ट्रेंथन्स द एसिड, राइट. मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड will be shifted towards the electron withdrawing group. Hence, it do what? It stabilize the carboxylic acid by the conjugate base through delocalization of the negative charge via the inductive or the resonance effect. In case of electron donating groups, what happens? Electron donate करता है towards the functional group. Functional group के पास पहले से ही already electron density ज़्यादा है. It is what? It is destabilizing actually the anion and weakens the acid. Fine. So this is the effect of substituents. Now come to the very example I have given here. It depicts what? हमारे को यहाँ पर एसिडिक एसिड गिवन है जिसका pKa वैल्यू 4.74 है एंड इट मूविंग टुवर्ड द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं विच वन इज मोर एसिडिक एंड हाउ. सबसे पहले हमें सबसे सिंपल वाला एसिटिक एसिड दिया हुआ है जहां पर ओनली CH3 मिथाइल ग्रुप इज अटैच. मूविंग टू one substituted with a halogen that is chloroacetic acid, हमारा जो acid pKa वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है. मीन टू से दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके. कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्लोराइड ने क्या किया है, एक क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ किया है फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. जो बीच में अल्फा कार्बन आया है ये उससे अटैच है. इसके थ्रू वन आई इफेक्ट फोर्थ कार्बन तक होता है, राइट. तो ये सेकेंड प्लेस के ऊपर हमारा क्लोरीन है एंड इट इज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. सिंगल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का 2.8 का इफेक्ट है. जब हम 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप देख रहे हैं दैट इज डाइक्लोरो नेक्स्ट के अंदर,
So the pKa value comes out to be 1.26, while in the case of 3, the pKa value is reduced to 0.64. Mean to say more of the electron withdrawing group जो हैं will add to the acidic nature of the ion. Right? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उतना ज़्यादा एसिडिक है, जो हमारे को टर्म pKa वैल्यू से भी क्लियर हो रहा है. Right? One more example I want to show. The example is concerned with the aromatic rings. Now look here, हमारे पास OCH3 mean to say methoxy group attached है at the para position to what? To the acid. तो जो methoxy group है, that is what? That is electron donating group. It is donating actually the group to the aromatic ring and the benzoic acid in fact. Right? तो इससे क्या होता है, तो हमारा जो functional group है that becomes unstable and it is less acidic. This is as well given by the pKa, higher pKa value, which is 4.46 here. Then is the benzoic acid with the pKa value 4.19. It shows that there is no electron withdrawing group, there is no electron donating group, so the value is 4.19. With the electron donating group, the value increases, mean to say weak acid बन जाएगा. Fine. Now moving towards the lower values of pKa, you make it a point कि जैसे जैसे हमारी pK वैल्यू कम हो रही है, हम हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है द नाइट्रो ग्रुप, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द रिंग एंड मेकिंग द फंक्शनल ग्रुप मोर stable and strengthening the acid, and hence the strong acid is the one with the orthonitro group. Okay, so this is what? This is corresponding to the pKa as well as the effect of substituents on the acidity of the carboxylic acids. The next I want to show you the direct attachment of group. For example, there is some phenyl or vinyl group attached to the carboxylic acid. It increases the acidity. How come? Because it decreases the expected resonating effect due to greater electronegativity of sp2 hybridized carbon, to which the carbonyl carbon is attached. तो I want to say कि कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है और यहाँ जो हमारा मिथाइल ग्रुप है फ्रॉम अबव, इनकी पीके वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, 4.74 एंड दिस इज 4.19. सो किसकी ज्यादा है, जहां पर हमारा फिनाइल ग्रुप है. फाइन, इट इज व्हाट, इट इज इंक्रीजिंग द acidity. The presence of electron withdrawing group on the phenyl of aromatic carboxylic acid increases the acidity, while electron donating group decreases the acidity. Right? Reactions with the metals. एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H बॉन्ड प्रोटॉन रिमूव होगा, और हमारे पास सोडियम मेटल है तो Na+, Mg है तो ट्वाइस हो जाएगा, जिंक है तो भी ट्वाइस हो जाएगा. इट इज ट्रू फॉर एलिफेटिक एज वेल एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन. वी नो एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होती है. दो ये मिनरल एसिड से वीकर हैं तो स्टिल दे आर एसिड्स, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी. रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, सिंपल. उसके बाद है रिएक्शन विद एल्कलीज. आई एम टेकिंग NaOH एल्कली ओवर हियर, KOH वगैरह, दे आर ऑल एल्कली. क्या बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट. ओके, the next is the reaction involving the cleavage of COH bond. मीन टू से कौन सा बॉन्ड, राइट हैंड साइड में आए ये वाला बॉन्ड, राइट. तो जब हमारा COH बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं. फाइन, द वेरी फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड.
फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कब है? इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो दो मॉलिक्यूल हैं एसिड के वो एनहाइड्राइड फॉर्म करेंगे विद द रिलीज ऑफ H2O। फाइन, मतलब जो H है, जो प्रोटॉन है वो रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, एनहाइड्राइड। देन कम एस्टेरिफिकेशन, ये हम 10th में करते हैं बार बार। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज अ वेरी important reaction in class 10, फ्रूटी स्मेल वाली रिएक्शन जो सेपोनिफिकेशन की ऑपोजिट थी, की है हमने सबने। व्हाट हैपेंस है कि अल्कोहल्स लेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, द acid and alcohol will form ester. Then comes what, reaction with PCl5, PCl3 and SOCl2. All of these give the simple OH replacement by Cl. इन सब के अंदर Cl है तो Cl सही, राइट। तो हमारे पास क्या है, OH की प्लेस पे Cl ऐड हो जाएगा। जो यहाँ पर ये तीनों हैं PCl3, PCl5, SOCl2, उसमें हम SOCl2 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई? बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के, वो gaseous हैं and they escape in the reaction mixture, making the purification of the product easier. Fine. Then comes the reaction with ammonia. Ammonia is NH3. अमोनिया की रिएक्शन सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे and it will form acetamide. Acetamide mean to say what? Acetamide is a different functional group with CONH2. Fine. This is true for aliphatic as well as aromatic. Benzamide बनेगा aromatic में और aliphatic में acetamide बन रहा है, right? The next is reaction involving COOH group. COOH group mean to say जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। वो तो बहुत बड़ी बात है, वहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। फाइन। नाउ द वेरी फर्स्ट इज रिडक्शन। ब्रेक नहीं करेगा, रिएक्शन हमारी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हो रही है। ओके, तो हमने जो लिखा है इन्वॉल्विंग लिखा है, क्लीवेज नहीं लिखा, नोटेड डाउन। हम किसकी बात कर रहे हैं, COOH ग्रुप की रिडक्शन की। तो रिडक्शन के लिए आई टोल्ड यू सबसे अच्छा रिड्यूसिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा मैंने आपको बताया था सोडियम बोरोहाइड्रेट, बट इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो हमें क्या लेना है, इसकी प्लेस पे डाइबोरेन। डाइबोरेन इज B2H6। ओके, द रिएक्शन इज सेम, हमारे को अल्कोहल मिलेगा एसिड्स। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मीन टू से रिमूव, कार्बोक्सिल मतलब CO2। तो जब हम रिमूव करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे उसको, और वो कब करेंगे, वो हम करेंगे सोडा लाइम और थोड़ा सा उसको हीट करेंगे रिएक्शन को। फाइन। तो व्हाट विल हैपन, द एसिड changes into hydrocarbon, that is this CO2 will be removed, reduced, mean to say D, mean to say CO2 will evolve and we'll get only RH over here, right? Now look, हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं Kolbe's electrolysis. Electrolysis mean to say there is something to do with the anode and cathode and current. फाइन, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम क्या करते हैं, एल्कली मेटल सॉल्ट्स जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। एक्वस सॉल्यूशन में कर रहे हैं तो क्या है, जब हम मैकेनिज्म नोट करें आप, जब हम आयनाइजेशन देखेंगे तो वील हैव व्हाट, एसिड की आयनाइजेशन एंड वाटर की आयनाइजेशन, we'll get what, we get RCO negative and H positive, negative and H positive. Positive will go to the cathode, cathode पे उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बिकॉज नेगेटिव होता है कैथोड, कैथोड नेगेटिव है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो वो क्या बनेगा,
हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट द कैथोड। जो नेगेटिव है वो किधर जाएगा? दैट विल गो टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड. Now here what will happen with the electrolysis, the R at anode, the R which is from the acid is bonded with the other R from the same acid and CO2 will be liberated at the एनोड. नाउ यहाँ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आ गई है कि जो हम एसिड, एक ही एसिड लेंगे तो जो हमारे R और R हैं वो डबल होंगे. फाइन. जो हमारा हाइड्रोकार्बन है that will be twice the number of the carbon atoms present in the acid. right? कौन से वाले? फंक्शनल ग्रुप से अलग. माइंडेड. फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन नहीं काउंट कर रहे. हम यहाँ पर कौन सा वाला काउंट कर रहे हैं? Only this one. We are not counting functional group. अब क्या होगा कॉल बेस के अंदर? अगर हम मिक्सचर ले लें तो मिक्सचर ले लेंगे तो फिर मिक्सचर वाले कंपाउंड ही बनेंगे. इसलिए we have to take and we have to make it a point कि हमारे को सेम लेना है. मिक्सचर बनेंगे तो फिर सेपरेट कैसे करेंगे? राइट. तो कॉल बेस प्रोसेस के अंदर ये इसके एडवांटेजेस मान लो कि ट्वाइस है. वील कम टू नो इजीली कि हम फटाफट ट्वाइस वाला बना सकते हैं. डिसएडवांटेजेस भी ले सकते हैं. वी कैन ओनली मेक even number of hydrocarbon, we cannot make odd number of hydrocarbon. Fine. Moving to next. Substitution reaction. Substitution का क्या मतलब था? Substitute करना, एक चीज को हटाना, दूसरी चीज को वहां add on करना. The very first and very nice named as Hell-Woltz-Zinsky reaction, जिसको हम HVZ reaction कहते हैं. Hell-Woltz-Zinsky reaction and it is HVZ, more famous as HVZ reaction. Simple halogenation reaction है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हैविंग अल्फा हाइड्रोजन. अब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है. हमें तो पता है अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? कहाँ है? ये रहा, अल्फा कार्बन पे. क्या होगा यहाँ पर? जब हम हेलोजन को, हेक्स इज एनी हेलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, रेड फास्फोरस की ट्यूब में से पास करेंगे, मतलब हेलोजन जो है रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल give on hydration, it will give a complete compound that is alpha halocarboxylic acid. अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन रिमूव्ड है और वहां पर हमारे पास क्या है? हेलो क्लोरो है या फिर ब्रोमो. दिस इज व्हाट? दिस इज HVZ reaction. It is small amount of red phosphorus लेनी है alpha halocarboxylic acid के लिए. Okay. The next is ring substituted. Ring substituted का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन को रिंग में से हटाएंगे और वहां पर हेलोजन को ऐड करेंगे, या फिर हम नाइट्रोजन को ऐड करेंगे, या फिर हम सल्फर को ऐड करेंगे. Mean to say it's simple substitution of aromatic carboxylic acid. Right. So the carboxylic acid act as deactivating और meta-directing group. Mean to say कब? जब नाइट्रेशन होगी, हेलोजिनेशन होगी. Why? क्योंकि जो हमारा COOH है, I told you a specific thing, ये क्या करता है? It deactivates. Right? तो हमारे पास क्या है? मेटा पोजीशन पे हेलोजन ऐड होगा और मेटा पोजीशन के ऊपर ही नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा. ओके. Now, yes है ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. हाँ जी. अब हम आ गए असाइनमेंट पे. होपफुली सब बच्चों को असाइनमेंट अच्छे से आ जाएगी. ऑल ऑफ यू आर एबल टू डू दिस. फर्स्ट वाले के अंदर देखो कौन सा एसिड है जो कि स्ट्रॉन्गर है? CH3COOH, CH2FF, COOH. तो यहाँ पर F सब्स्टिट्यूटेड है और F क्या करता है? इलेक्ट्रो डेंसिटी को अपनी तरफ, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. ठीक है. तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन को, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको स्ट्रेंथन करेगा एंड इट विल बी मोर एसिडिक. द नेक्स्ट इज फ्लोरीन है और राइट वाले के अंदर क्लोरीन है. फ्लोरीन ज्यादा करता है, क्लोरीन ज्यादा करता है. राइट. उसके अकॉर्डिंगली हमारा एसिडिक है.
नेक्स्ट कम्स इज व्हाट, फिनॉक्साइड आयन. आई टोल्ड यू कि उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, बट जो काम आ रहे हैं वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक के आ रहे हैं. बाय बिकॉज जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है ग्रुप और जो कार्बोक्सिलेट आयन है उनमें दोनों में रेजोनेंस हो रही है, एंड दे बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एसिडिक नेचर. वाइल फिनॉक्साइड के अंदर जो रेजोनेंस हो रही है उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर ही हमारा लोकलाइज चार्ज है, वाइल जो रिंग है उसके ऊपर हमारा जो चार्ज है वो यूज नहीं हो रहा. मतलब रेजोनेंस तो हो रही है लेकिन वो हमारे काम नहीं आ रहा, तो हमारा फिनोल जो है वो कम एसिडिक है. Fine, write the following reaction. The very first is HVZ reaction. I told you just now. The next is decarboxylation. इसके अंदर आप कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखेंगे. फाइन. उसके बाद है रिडक्शन. रिडक्शन भी आपको कौन कौन सी कराई है, नोट करें. यस, वो वाली रिएक्शंस लिखनी है दी. और रिडक्शन के अंदर ये भी बताना है कि कौन से वाले के साथ नहीं होगी और किसके साथ रिडक्शन होगी. देन कम्स द हेलोजिनेशन. हेलोजिनेशन के अंदर 2 HVZ है, लेकिन अदर नॉर्मल हेलोजिनेशन के अंदर आपको एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों कंडीशंस की हेलोजिनेशन करके शो करनी है. फाइन. हैव अ नाइस डे. होपफुली रिएक्शन सबको समझ आ गई. कार्बोक्सिलिक के तो बहुत सिंपल है, एसिडिक नेचर का आप जरूर करें. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.